رانو چڑیا اپنے گھر سے بھوجن کی تلاش میں نکلتی ہے۔ جب وہ جھرنے کے پاس سے گزرتی ہے تو اس جھرنے پر ایک چھوٹا طوطے کا بچہ روتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ رانو چڑیا اس بچے کے پاس جاتی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ یہاں اکیلے بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے ماتا پتا کہاں ہیں؟ یہ سن کر چھوٹا مٹھو اور زور زور سے رونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنٹی، کل جنگل میں شکاری آیا تھا، اس نے میرے مما پاپا کو مار دیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ میں کل سے یہاں بیٹھا رو رہا ہوں۔ بہت سے بڑے پکشیوں نے مجھے دیکھا لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ آنٹی، میں بہت بھوکا ہوں۔ یہ تو بہت برا ہوا، لیکن بیٹا آپ اکیلے نہیں ہو، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ میرے پاس گھر میں بھوجن ہے، چلو میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ پھر رانو چڑیا اس اناتھ بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ رانو چڑیا چھوٹے مٹھو کو ایک میٹھا پھل کھانے کے لیے دیتی ہے۔ گڑیا اور کوکو غور غور سے اس چھوٹے بچے کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹی گڑیا اور بیٹا کوکو، یہ چھوٹا مٹھو ہے، اس کے مما پاپا اب اس دنیا میں نہیں رہے، یہ بچہ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، یہ آپ دونوں کا نیا بھائی ہے۔ رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا بڑی اور عقل مند تھی، وہ بات کو سمجھ جاتی ہے اور چھوٹے مٹھو کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ مٹھو بھائی، آپ جلدی سے یہ پھل کھا لو، پھر ہم دونوں مزے سے کھیلیں گے۔ آج سے جیسے میں کوکو کی بڑی بہن ہوں، ویسے ہی آپ کی بھی بڑی بہن ہوں۔ لیکن کوکو ضدی تھا، وہ چھوٹے مٹھو کو دیکھ کر ذرا بھی خوش نہیں ہوتا۔ مما، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، اسے کہیں یہ واپس چلا جائے۔ بیٹا کوکو، گندی بات، ایسے نہیں کرتے، یہ بچہ اناتھ ہے اور یہ اب یہیں رہے گا۔ کوکو غصے میں گھر سے نکل جاتا ہے۔ ایسے رانو چڑیا کے ساتھ وہ اناتھ طوطے کا بچہ رہنے لگتا ہے۔ ایک دن جب رانو چڑیا باہر گئی تھی تو چھوٹا مٹھو کوکو کی ریل گاڑی والا کھلونا اٹھاتا ہے اور گھر سے باہر جا کر کھیلنے لگتا ہے۔ کوکو رسوئی سے جب اپنے کمرے میں آتا ہے تو اس کا کھلونا وہاں نہیں تھا۔ میں یہیں پر تو اپنا کھلونا چھوڑ کر گیا تھا، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، چلو اپنے دوست کیکی کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہوں۔ کوکو جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو چھوٹے مٹھو کے پاس اپنا کھلونا دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کھلونے کو ہاتھ لگانے کی؟ لاؤ واپس کرو میرا کھلونا۔ کوکو بھائی، ہم دونوں مل کر کھیلنے میں بہت مزہ آئے گا۔ نہ تو تم میرے بھائی ہو اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ کوکو اپنا کھلونا چھوٹے مٹھو کے پنکھ سے زور سے کھینچتا ہے اور واپس گھر چلا جاتا ہے۔ چھوٹا مٹھو رونے لگ جاتا ہے۔ مما پاپا، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ اگر آج آپ میرے ساتھ ہوتے تو مجھ سے سب پیار کرتے، آپ مجھے کھلونے لے کر دیتے، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاتا، دانا ڈھونڈتا۔ چھوٹا مٹھو وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ رانو چڑیا بھی واپس گھر آ جاتی ہے۔ کیا بات ہے مٹھو بیٹا، آپ رو کیوں رہے ہو؟ چھوٹا مٹھو رانو چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے۔ یہ تو بہت برا کیا کوکو نے، مٹھو بیٹا میں اسے سمجھاؤں گی، وہ آئندہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ چلو مٹھو بیٹا، آؤ گھر کے اندر آ جاؤ۔ گھر جا کر رانو چڑیا کوکو کو خوب ڈانٹتی ہے۔ کوکو، کیا میں نے آپ کو یہی سکھایا ہے کہ کسی اناتھ بچے کے ساتھ برا سلوک کرو؟ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی ہر چیز پر اس کا بھی ادھیکار ہے۔ آئندہ چھوٹا مٹھو جس بھی کھلونے کے ساتھ کھیلنا چاہے وہ کھیلے گا، اور اگر آئندہ
आपने छोटे मिठू का दिल दुखाया तो मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। कुकू को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है, आज इस मिठू के बच्चे के कारण मुझे मेरी मम्मा से डांट पड़ी है। मेरी मम्मा मुझसे ज्यादा इसका प्यार करने लगी है। मैं भी कल इसे बहुत दूर छोड़ आऊंगा ताकि ये कभी वापस मेरे घर ही ना आ सके। अगले दिन कुकू छोटे मिठू के पास जाता है। मिठू भाई, चलो आज जंगल की सैर करने चलते हैं। छोटा मिठू बहुत खुश हो जाता है। कुकू भाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे अपना भाई समझा। चले आज खूब मजे करेंगे। फिर कुकू छोटे मिठू को अपने साथ ले जाता है। कुकू धोखे से छोटे मिठू को वीरान जंगल में ले जाता है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। कुकू भाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पास ही मेरे दोस्त का घर है, मैं उसे लेकर आता हूँ। तुम तब तक यहाँ ही बैठो। छोटा मिठू कुकू की बात मानकर वहाँ बैठ जाता है और कुकू वहाँ से उड़ता है। कुकू जैसे ही वीरान जंगल से बाहर निकलने लगता है, उसे पहाड़ों के दरमियान कुछ मकई के भुट्टे नजर आते हैं, जिन्हें देखकर कुकू के मुंह में पानी आ जाता है। कुकू जल्दी से वहां से जाकर मकई का भुट्टा तोड़कर खाने लगता है। अच्छा हुआ उस मिठू के बच्चे को वहां छोड़ आया। अब उसको कोई भूखी चील खा जाएगी और मैं आराम से ये भुट्टा खाकर वापस घर चला जाऊंगा। काफी देर हो गई, कुकू भाई अभी तक आए नहीं। क्या पता वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हो। मैं उस तरफ जाता हूँ। कुकू भुट्टा खा रहा था कि वहां पर भूखी चील आ जाती है। चील को देखकर कुकू कांपने लग जाता है। ना ना, कांपो मत बच्चे, मैं अभी आपको नहीं खाऊंगी। मैं तुम्हें घर ले जाकर मिर्च मसाला लगाकर खाऊंगी। चलो खुद ही मेरे साथ चल पड़ो, वरना मैंने जोर का पंजा तुम्हें मारना है और तुमने वही बेहोश हो जाना है। आप मुझे मत खाओ। दूसरी तरफ एक तोते का बच्चा है, आप उसे खा लो। मुझे पागल बना रहे हो? मैं वहां जाऊं और तुम यहाँ से भाग जाओ। मेरे पेट में तो तू ही जाएगा। चील जैसे ही कुकू पर हमला करने लगती है, पीछे से छोटा मिठू एक बड़ा डंडा लेकर आता है और जोर जोर से चील को मारने लगता है। मेरे होते हुए तुम दुष्ट चील मेरे भाई को कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने भाई को हर तरह की मुश्किल से बचाऊंगा। डंडे खा खा कर चील बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। छोटा मिठू कुकू को लेकर वहां से दूर भाग जाता है। मेरे भाई, आप ठीक हो ना? कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो मिठू भाई, मैं यहाँ आपको लेकर आया ताकि चील आपको खा ले और आप वापस ना जा सको। मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन आपने मेरी मदद की। आपने मेरी जान की खातिर अपनी जान मुश्किल में डाल दी। आपने मुझे बचाया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपका बुरा सोचा, लेकिन आपने हमेशा मेरा अच्छा सोचा। कोको भाई, मैं जब से आपके घर आया हूँ, मैंने सच्चे मन से आपको अपना भाई समझा है, तो आपको बचाना मेरा फर्ज था। कोको अपने भाई छोटे मिठू के गले लग जाता है। आपने साबित कर दिया कि आप मेरे सच्चे भाई हो। मैं माफी चाहता हूँ जो मैंने आपके साथ किया। चले भाई, घर चले। फिर कुकू और छोटा मिठू खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उस दिन के बाद से कुकू हमेशा छोटे मिठू के साथ खेलता, उसके साथ खाना खाता और उसके साथ अच्छे से रहता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। काली बिल्ली एक अंगूरों से भरी टोकरी उठाती है और जंगल के किसी पक्षी को फंसाने चली जाती है। एक पेड़ की डाल पर रानू चिड़िया बैठी हुई थी। काली बिल्ली अपनी अंगूरों की टोकरी लेकर वहां जाती है। मियाऊ मियाऊ। चिड़िया, लो ये अंगूर खाओ, बहुत मीठे रस भरे अंगूर हैं। एक बार खाओगी तो बार बार खाने का मन करेगा। मियाऊ। मुझे पागल समझ रखा है तुमने। मैं तुम्हारे पास अंगूर खाने आऊं और तुम मुझे ही पकड़ कर खा जाओ। चलो निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। मियाऊ। तुम तो बड़ी डरपोक हो। मैं वो काली बिल्ली नहीं हूँ जो मांस खाए। मैं भी तुम पक्षियों की तरह फल और दाना खाती हूँ। देखो, तभी तो ये अंगूरों से भरी टोकरी लेकर फिर रही हूँ। मैं भी यही खाऊंगी और तुम भी यही खा लो। मुझे पागल मत बनाओ, तुम तो यहाँ से जाने वाली नहीं, मैं ही चलती हूँ। रानू चिड़िया वहां से उड़ जाती है। काली बिल्ली भी अपनी अंगूरों की टोकरी उठाती है और वहां से चल पड़ती है। एक पेड़ के नीचे कबूतर बैठा था। काली बिल्ली पीछे से जाती है। कबूतर कबूतर, आओ ये अंगूर खाओ। मियाऊ। कबूतर जल्दी से पीछे मुड़ता है। दुष्ट काली बिल्ली, तुम यहाँ निकल जाओ। ये देखो, मैं अंगूर लाई हूँ, ये खाकर तो देखो। मियाऊ। जरूर इन अंगूरों में कोई दवा होगी जिसे खाकर मैं बेहोश हो जाऊंगा और तुम मुझे खा लोगी। मैं तो जा रहा हूँ। कबूतर जल्दी से वहां से उड़ जाता है। ये जंगल के पक्षी तो बड़े होशियार हो गए हैं। कोई मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा। लगता है आज भी फल खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। मियाऊ। फिर काली बिल्ली मजबूर होकर वो अंगूर खुद खाने लग जाती है। थोड़ी दूर एक घने पेड़ के डाल पर एक काला कौवा बैठा हुआ था जो बहुत लालची था। काली बिल्ली को अंगूर खाता देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। सुबह से भूखा हूँ और वो काली बिल्ली कितने मजे ले लेकर वो रसीले अंगूर खा रही है। अगर एक अंगूरों का गुच्छा मुझे भी दे दे तो मजा ही आ जाए। कालू कौवा ऐसा सोचकर उड़ता है और काली बिल्ली के पास जाता है। मियाऊ। क्या हुआ काले कौवे, क्या ये अंगूर खाने का मन कर रहा है? हाँ, मन तो कर रहा है, लेकिन तुमसे डर भी बड़ा लगता है। तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे ही पकड़ कर खा जाओ। मियाऊ। मैं तुम्हें भला क्यों खाऊंगी? तुम भी काले, मैं भी काली, हम दोनों की दोस्ती खूब जमेगी। तुम मुझसे दोस्ती कर लो, फिर हर रोज हम मीठे मीठे फल खाएंगे। मियाऊ। ना ना, अभी मैं तुम पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, एक अंगूरों का गुच्छा मेरी तरफ फेंक दो, फिर बाद में मैं सोचूंगा कि तुमसे दोस्ती करनी है या नहीं। लो लो, एक क्या, मैं तुम्हें दो दो अंगूरों के गुच्छे देती हूँ। मियाऊ। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली दो अंगूरों के गुच्छे कालू कौवे की तरफ फेंक देती है। ये लो, मजे मजे से खाओ, मुझसे दोस्ती करने से तुम्हें फायदा ही होगा। कालू कौवा वो अंगूरों के गुच्छे उठाता है और वहां से उड़ जाता है। और थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठकर कालू कौवा मजे मजे से अंगूर खाने लगता है। हम्म, 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 हम्म। बहुत ही स्वादिष्ट है ये अंगूर। अच्छा हुआ काली बिल्ली से मांग लिए। काली बिल्ली वापस अपनी गुफा में आ जाती है। बिल्ली मौसी, क्या बना? क्या कोई पक्षी मिला? नहीं लोमड़ी बहन, कोई भी पक्षी मेरे मीठे फल के लालच में मेरे पास नहीं आया। एक काला कौवा आया था, वो भी बस दूर से ही अंगूर लेकर वहां से चला गया। मियाँ। तुम चिंता मत करो बिल्ली मौसी, वो कौवा लालची है, वो दोबारा तुम्हारे पास खाने के लालच में जरूर आएगा। तुम कल फिर उसके पास जाना। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। मियाऊ। हाँ, मेरा तो कब से मन कर रहा है मांस खाने को। अगले दिन फिर से काली बिल्ली गुफा से निकलती है और जंगल जाती है। काली बिल्ली देखती है कि रानू चिड़िया जंगल दाना लेने जा रही है। इस चिड़िया के बच्चे घर पर अकेले होंगे, चलो जाकर उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करती हूँ।
मियाओ। काली बिल्ली जल्दी से जाती है और रानू चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, दरवाजा खोलो। हमारी मम्मा ने कहा है कि मेरे आने से पहले दरवाजा मत खोलना। बेटी, मैं कौन सा तुम दोनों को खा जाऊंगी, मुझे अंदर तो आने दो। सॉरी आंटी, जब मम्मा आएगी हम तभी दरवाजा खोलेंगे। ये इस छोटी चिड़िया के बच्चे भी बड़े चालाक हैं, मुझे तो लगा था इनको फंसाना आसान होगा। चलो उस काले कौवे के घर ही जाती हूँ, वो ही अकेला ऐसा है जो मेरी बात पर विश्वास करेगा। मियाओ। काली बिल्ली कालू कौवे के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। बहादुर काले कौवे, दरवाजा खोलो, मैं हूँ काली बिल्ली। मियाओ। कल मीठे अंगूर खाए थे ना, आज मैं तुम्हें मीठे अनार खिलाऊंगी। मियाओ। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से दरवाजा खोलता है। हाँ हाँ, मैं खाऊंगा मीठे मीठे अनार। तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ बड़े बड़े मीठे मीठे अनार हैं। वो पेड़ थोड़ा ऊंचा है, मैं तो वहाँ चढ़ नहीं पा रही, लेकिन तुम उड़कर वहाँ से अनार उतार लोगे। मियाओ। अच्छा, ऐसा है, चलो फिर मुझे वहाँ ले चलो। कालू कौवा बिना सोचे समझे काली बिल्ली के साथ चल पड़ता है। रास्ते में उन दोनों को रानू चिड़िया मिलती है। कौवे, कौवे भैया, आप कहाँ जा रहे हो? आप क्यों इस काली बिल्ली के साथ हो? ये आपको खा जाएगी। नहीं चिड़िया रानी, ये काली बिल्ली तो मुझे अनार खिलाने लेकर जा रही है। तुम जाओ यहाँ से, डरपोक चिड़िया। ये मेरा दोस्त बहुत बहादुर है, ये नहीं डरता वरता। कालू दोस्त, तुम इसकी बात मत सुनो। कालू भैया बच जाए, ये ऐसे ही सबको अपने झांसे में लेकर खा जाती है। मियाओ। कालू दोस्त, तुमने इस छोटी कमजोर चिड़िया की बात सुननी है या फिर मीठे अनार खाने हैं? नहीं नहीं बिल्ली दोस्त, मुझे तो अनार खाने हैं। कालू कौवा रानू चिड़िया की बात नहीं सुनता और काली बिल्ली के साथ चल पड़ता है। काली बिल्ली कालू कौवे को बहुत दूर ले जाती है। एक बड़े पेड़ के पीछे लोमड़ी छुपी हुई थी। कालू दोस्त, इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करो, फिर आगे जाते हैं, मैं थक चुकी हूँ। मियाओ। जैसे ही कालू कौवा उस पेड़ के नीचे जाता है, लोमड़ी पीछे से निकलती है और कालू कौवे को पता लगे बिना ही उस पर हमला कर देती है और जोर से अपना पंजा मार मार कर कालू कौवे को मार देती है। फिर दोनों सहेलियां काली बिल्ली और लोमड़ी मज़े ले लेकर कालू कौवे को खा जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।